اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کلاس کو. آپ لوگ اپنے مائکس کو میوٹ کر لیجئے. جس نے پڑھنا ہوگا انشاءاللہ بس وہی سب سے پہلے پڑھیں انشاءاللہ تعالی. تو آپ سب کو نیا سال مبارک. اللہ تعالیٰ نے ایک سال اور خیریت سے گزروا دیا الحمدللہ. اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ دیکھیں جب ہم آپ لوگ تو خیر ینگ ہیں، لیکن جب میں چھوٹی تھی تو ہم لوگ یہ بولتے تھے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، 1400 سال گزر چکے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہ 1400 سال کے بدلے اب ہجری کیلنڈر کو دیکھیں آپ 1442 آ گیا ماشاءاللہ. تو مطلب اتنے سال اور گزر کے ہم اتنے زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی صحت اور عافیت کے ساتھ، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ہر روز اللہ کا شکر ادا کریں صبح شام کے اللہ تعالیٰ کے کن کن نعمتوں سے ہم کہیں گے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان میں ہم کس طرح ہم کفر کریں گے، ناشکری کریں گے. ہم گن بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. تو چلیں شروع کرتے ہیں. آج ہمارا پارٹ 6 ہے CIU کی عربک 3 کا قصص النبیین کا. آج ہم یوسف علیہ السلام کا پارٹ 6 ہے ہمارا. تو کون پڑھے گا؟ عارفہ آپ تھیں پہلے، آپ پڑھنا چاہیں گی؟ جی پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف فی البیری بیری بیری یعنی یوسف کنویں میں. ورجع الاخوۃ الی البیت. اتنا پہلے بتا دیں. ورجع وہ اور واپس آ گئے. ہاں اخوۃ بھائی، سب بھائی. الی البیت گھر کی طرف. جی ٹھیک ہے جی. وترکوا یوسف فی البیری یعنی اور چھوڑ آئے. ترکو مطلب چھوڑ آئے. جی جی چھوڑا ہے، بالکل صحیح ہے. چھوڑ آئے یوسف فی البیری یوسف کو کنویں میں. جی. وَأَكَلَ الْإِخْوَةُ الطَّعَامَ. اس کا اکلا کا مطلب ہے کھانا، مطلب کھانا. کھایا. اور کھانا کھایا بھائیوں نے. طعامہ رات کا کھانا. رات نہیں لکھا ہوا ہے، بس لکھا رات نہیں، طعامہ مطلب کھانا. طعامہ مینس فوڈ. ہاں ڈنر بھی نہیں ہوتا ہے. طعامہ مینس فوڈ. اٹ مینس فوڈ. ہاں طعام مینس فوڈ. طعام مینس فوڈ. وَنَامُوا عَلَى الْفِرَاشِ. سوری یہ نامو نام کے لیے نام آپ کو یاد ہے آپ نے پہلے پڑھا تھا نام ہے یا نامو کیا چیز ہوتا ہے؟ چلیں آپ آگے کر لیں پھر میں. ٹھیک ہے. علی الفراش و یوسف فی البیری. یہ تو اور یوسف ان ویل یوسف فی البئر. فی البیری یوسف کنویں میں تھے. کنویں میں. ولا فراشا ولا طعاما ونسی الاخوان یوسف وناموا. ونسی الاخوان یوسف. ونسی الاخوان یوسف. نسی الاخوان بھائی. نسیت مینس بھول گئے. جی بھول گئے ہے نا. یوسف کو بھول گئے. وناموا ومن نام نہیں بتایا. ولا فراش ولا طعام. ولا فراشا. فراشا مینس فرش، بستر کہہ لیں، بستر یا جو. اور نہیں تھا فرش اور نہیں تھا طعام. ہاں فرش نہیں کیا آپ اس کو بستر ہی کہہ لیں کیونکہ بستر بھی نہیں تھا اور کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا. ونسی الاخوان یوسف. اور بھائی جو تھے وہ یوسف کو بھول گئے. وناموا اور وہ سو گئے. اور وہ سو گئے. اچھا نامو مینس سو. ایک اور لائن پڑھ لیجئے. وما نام یوسف وما نسی احدا. یوسف نہیں، ٹھیک ہے، نہیں سوئے. نہیں سوئے. ہاں. وما نسی احدا اور نہیں اور بھولے. نہیں بھولے. ٹھیک ٹھیک ہے نا. چلیں اب میں کرتی ہوں. بقیہ نہیں ابھی پڑھنا ہے. ہاں نہیں ٹھیک تھوڑا ہے تھوڑا کرتے ہیں تاکہ پھر ذرا ٹھیک ہے جلدی ہو جائے. ہاں مجھے تھوڑی دیر لگ رہی ہے. نہیں اس کی وجہ سے نہیں، میں کہتی ہوں پھر مجھے یاد بھی نہیں رہتا. نہیں نہیں صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح. یوسف فی البئر. یوسف ان دا ویل یعنی یوسف کنویں میں. ٹھیک ہے نا. اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. جس طرح ٹائٹل ہے تو یوسف کنویں میں تھا یا یوسف کنویں میں ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یوسف ان دا ویل، یوسف کنویں میں. ورجع الاخوۃ الی البیت. رجع کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح عرفہ نے کہا واپس آئے، ریٹرنڈ. انگلش میں ریٹرنڈ، اردو میں واپس آئے.
रजा यरजियो, आपको याद है ना? अच्छा, उसके बाद इख्वतु, आपको पता है इख्वतु अगेन आपको याद है कि ये बहनें नहीं है, ये भाई हैं, ठीक है ना, ये भाई की जमा है। वरजअल इख्वतु इलल बैती, इला आपको पता है टू या टूवर्ड्स, और बैत मतलब है घर, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। एंड द ब्रदर्स रिटर्न्ड टू द हाउस, या आप कहें और भाई घर वापस आए। अब ये टू है, टूवर्ड्स नहीं, ये टू है, ठीक है ना, कभी टू होता है कभी टूवर्ड्स होता है, दोनों यूज हो सकता है। वतरकू यूसुफा फिल बिरी, तरका का क्या मतलब है? तरका का मतलब वतरकू, तरकू का मतलब है उन्होंने छोड़ा, उन्होंने दे लेफ्ट यूसुफा, उन्होंने यूसुफ को छोड़ा, फिल बिरी इन द वेल, उन्होंने यूसुफ को कुएं में छोड़ा। इरशादा आपका माइक खुली हुई है, बंद कर लीजिए प्लीज। वतरकू यूसुफा फिल बिरी, और उन्होंने यूसुफ को कुएं में छोड़ा, एंड दे लेफ्ट यूसुफ इन द वेल। अब देखें यहाँ पर यूसुफा है ना, यूसुफा क्यों है? आप बताइए, यूसुफू क्यों नहीं है? कोई बताइए। The object of the verb. Object of which verb? Taraku. Taraku. So they left Yusuf, it is the object of the verb, इसीलिए मंसूब होता है। पूरा जवाब दिया करिए, मंसूब होता है। फिल बिरी इन द कुआं, फिल बिरी क्यों आता है? बिरू होना चाहिए ना, फी है इसलिए, फी है इसलिए, ठीक है, क्योंकि हरूफ जर है। व अकल अल इख्वतु तुआमा, व अकला, अकला का मतलब है खाया, यानी इसका याकुलु, अकला याकुलु, आप लोगों ने सीखा हुआ है ये, शायद नहीं भी सीखा हो तो अभी फिर से याद कर लें। अकला याकुलु यानी कि खाया, तो उन्होंने खाया, किसने खाया, किधर गया? अकल इख्वतु, और भाइयों ने अतआमा, खाना खाया। तो आम का मतलब है फूड, ये तो आपको पता है, ये तो आम का मतलब फूड होता है, सब लोग जानते ही हैं, जो भी उम्रे पे गए, हज पे गए, उनको भी मालूम है। तो भाइयों ने क्या किया, उन्होंने यूसुफ को छोड़ के आ गए और उन्होंने खाना खाया। So and they left Yusuf in the well, and the brothers ate food. वनामु अलल फिराशी, and they slept on अलल फिराशी, ऑन द बेड्स कह लें या ऑन, इसमें जितने भी ट्रांसलेशन है सब में इंग्लिश में बेड ही लिखा हुआ है, मैंने ढूंढा, लेकिन हम उर्दू में कह सकते हैं बिस्तर पे या पलंग पे, जो भी कहना चाहें, क्योंकि शरीर भी बेड होता है, शरीर बेड होता है, तख्त होता है, बेड होता है नॉर्मली, तख्त नहीं होता है। तो इसमें ये वो शरीर दूसरा होता है, और ये ऐसे जैसे कह रही थी ना अरफा के फर्श, मतलब वो बिछा हुआ होता है, इसीलिए उसको फिराश, जो चीज बिछी भी हो, तो वो बेड के ऊपर या बिस्तर के ऊपर, हर जगह पे ट्रांसलेशन में बेड ही लिखा हुआ था। एंड दे स्लेप्ट वनामू, एंड दे स्लेप्ट अलल फिराशी ऑन देयर बेड्स। और नामू आपको याद है ना, नामा या नामू हमने पढ़ा था अरबिक 1 में या 2 में, और फिराश बेड हो गया। उसके बाद क्या है, वनसियल, नहीं, वयूसुफु फिल बिरी, वयूसुफ फिल बिरी, और यूसुफ जो है वही चीज है, यूसुफ जो है वो कुएं में है, एंड यूसुफ इज इन द वेल, वला फिराशा वला तुआमा, ये इसके साथ दोबारा से इसलिए लिखा है कि वो कुएं में है, ना उसके पास बिस्तर है और ना उसके पास खाना है। तो आप सोचें, बेचारा छोटा सा है और उसके पास ना बिस्तर है ना खाना है, और वो कुएं में पड़े हुए हैं। वनसियल इख्वानु यूसुफा, और भाई जो हैं वो यूसुफ को उन्होंने भुला दिया। यूसुफ इज इन द वेल, there is no bed and no food, and the brothers forgot Yusuf. वनामू and they slept. देखें, उनको बिल्कुल ये भी नहीं है कि हमारे भाई को हम छोड़ के आए, अफसोस भी नहीं है, रिग्रेट भी नहीं है, जरा सा भी, शर्मिंदा भी नहीं है, तो क्या वो अल्लाह से माफी मांगेंगे, क्या वो तौबा करेंगे, और ये सोचें कि ये पैगंबर के बेटे हैं और पैगंबर के भाई हैं, ये तो हाल है उनका। तो इसीलिए ना वो यूसुफ को याद कर रहे हैं, ना वो यूसुफ के बारे में फिक्र कर रहे हैं, ना उनको ऐसा है कि नींद नहीं आ रही है। हम तो जरा से परेशान होते हैं, हमें तो नींद ही नहीं आती है, खाना भी नहीं खाया जाता है, वो खाना भी खा रहे हैं, सो भी रहे हैं, याद भी नहीं कर रहे हैं, और भुला के बैठ गए हैं। वमा नाम यूसुफु, लेकिन यूसुफ जो है वो सो नहीं सक रहे हैं, बिल्कुल। वमा नाम यूसुफु वमा नसिया अहदन, यूसुफ जो है वो सो भी नहीं सक रहे हैं और वो किसी को भूले भी नहीं है। यूसुफ डिड नॉट स्लीप एंड ही डिड नॉट फॉरगेट एनीवन। मा नामा का मतलब है डिड नॉट स्लीप, मा नामा डिड नॉट स्लीप, वो नहीं सोए और ना वो किसी को भूल सक रहे, एंड ही डिड नॉट फॉरगेट एनीवन। आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? शमीम पढ़ लीजिए। वबकिया याकूब, वबकिया याकूब यज़कुरु यूसुफा, and Yaqub stayed remembering Yusuf. That's what it means. जी,
and Yaqub stayed remembering Yusuf. وبقي يوسف يذكر يعقوب. And Yusuf remained, stayed remembering Yaqub. وكان يوسف في البئر. And Yusuf was in the well. وكانت البئر عميقة. And the well was deep. وكانت البئر في الغابة. And the well was in the woods. وكانت الغابة موحشة. And the well was lonely. غابة. وكانت الغابة. And the woods were the woods were lonely. I mean, it was lonely in the woods. The woods, आप ये कह सकते हैं, the forest was deserted, scary, frightening. मुहीशतन का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं. Deserted भी होता है, lonely होता है, scary होता है, frightening होता है. एक जंगल का मतलब आप देख लेना, जंगल में आप घुसेंगे तो क्या क्या होगा वहाँ पर. आगे. وكان ذلك في الليل. And this was in night. وكان الليل مظلما. And the night was dark. Okay. ठीक है. वबकिया याकूबु यज़कुरु यूसुफा. वबकिया, बकी यानी जैसे हम कहते हैं ना बाकी, उसका मतलब remained या continued. यानी बकिया याकूबु and याकूब remained या याकूब continued यज़कुरु यूसुफा. He continued या he remained. असल में continued अच्छा रहेगा. He continued to remember Yusuf. या यज़कुरु का मतलब remember, ज़कर यज़कुरु से, ठीक है ना आपको. And याकूब continued or remained to remember Yusuf. वबकिया यूसुफु यज़कुरु याकूबा. And Yusuf continued to remember याकूब. बाप बेटे को याद कर रहे हैं और बेटा बाप को याद कर रहा है. दोनों मतलब रुके नहीं. Continued, बकिया मतलब they remained, they continued to remember each other. वकाना यूसुफु फिल बिरी. देखो जरा दोनों को क्या हो रहा होगा. बाप बेटे को याद करें. आप इमेजिन करें अपने आप को, तो आपको कैसा, मुझे तो कुछ हो जाता है. मैं सोच भी नहीं सकती हूँ. इतनी घबराहट जब सोचो कि एक बच्चा है, छोटा सा है, वो वेल में है, उनकी क्या हालत हो रही होगी और याकूब अलैहिस्सलाम की क्या हालत हो रही होगी. अल्लाह ताला ने पैगंबरों को इतनी आजमाइशों में डाला है. हमारे लिए तो आजमाइशें कुछ भी नहीं है इनके आगे. हम भी आजमाइशों में आते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी आजमाइशों से घबरा जाते हैं. वकाना यूसुफु फिल बिरी. And Yusuf was in the well. यूसुफ कुएं में थे. वकानतिल बिरु अमीकतन. और and the well was deep. अमीकतन का मतलब है deep और अमीकतन, ठीक है ना. अमीकतन काना आया है, इसीलिए काना के बाद जब आपका बताया था लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था जब हमने काना का किया था. और यहाँ काना नहीं है, कानतिल आ गया. कानतिल क्यों आया? कानतिल इसलिए कि बिर, हमने पहले डिस्कस किया था कि बिर जो है वो फेमिनन है. So कानतिल बिरु अमीकतन, and that's why अमीकुन के बदले या अमीकन के बदले अमीकतन है, यानी ये फेमिनन है. कानतिल बिरु अमीकतन. और चूंकि ये इस्म काना है, बिर, इसलिए वो मरफू है. और चूंकि अमीकतन उसका खबर काना है, इसलिए वो मंसूब है. وكان يوسف في البئر وكانت البئر أميقة. And Yusuf was in the well and the well was deep. وكانت البئر في الغابة. And the well was in the forest. याद है गाबा का हमने कहा था वो चीज जिस दर गायब हो जाती हैं चीजें नजर नहीं आती because जंगल होता है और अंधेरा होता है. وكانت الغابة موحشة. और फॉरेस्ट जो था या जंगल जो था वो मुहीशतन यानी वो बहुत खाली खाली था. वहां पर अंधेरा भी था और बहुत डरावना भी था क्योंकि वहां पर कोई था नहीं, ठीक है ना. तो इंग्लिश में उसको कहेंगे कि द फॉरेस्ट वाज डिजर्टेड भी कह सकते हैं, लोनली भी कह सकते हैं, स्कैरी भी कह सकते हैं, फ्राइटनिंग भी कह सकते हैं, और मुहीशतन का ये मतलब हुआ, ठीक है. और अगेन चूंकि ये खबर उकाना है इसलिए ये मंसूब है. मुहीशतुन नहीं है, मुहीशतन है. और गाबा क्या है? इस मुकाना है, इसलिए गाबतु आ गया, ठीक है. एंड द फॉरेस्ट वाज डिजर्टेड या लोनली. वकाना ज़ालिका फिल लैली. एंड दैट वाज in the night, ठीक है ना. फिल लैली in the night, and that was in the night यानी वो रात का वक्त था. वकाना वो रात थी. वकाना लैलु मुस्लिमन, and the night was dark. मुस्लिमन आपको बताया था ना कि मुस्लिमन डार्क होता है. अब आप
پھر یہی سوچ لیں کہ بیچارے یہ سب جو ایکسپلین کیا انہوں نے, یہ آتھر جو ہیں انہوں نے بچوں کے لیے کتاب لکھی ہے, بھولیے مت. تو یہ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کیا حال تھا, وہ بھی بچے تھے یوسف علیہ السلام بھی, اور ان کا کیا حال تھا, کس طرح وہ ایک کنویں میں ہے, ڈیپ کنواں ہے, ڈارک کنواں ہے, ارد گرد فارسٹ ہے, فارسٹ بھی ڈارک ہے, فارسٹ بھی لونلی ہے, اور کہاں پر ہیں وہ, بالکل اکیلے ہیں, بالکل اکیلے ہیں, all by himself. اگر سمجھو کہ ایک بھائی ساتھ ہوتا, 2 بھائی ساتھ ہوتے تو پھر بھی اتنا ڈر نہیں لگتا, لیکن چونکہ وہ بالکل اکیلے ہیں, یہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ اکیلے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ اکیلے ہیں, تو ان کی کیا حالت ہو رہی ہوگی, کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے. اچھا, اب نیکسٹ پڑھیے پارٹ نمبر 7. کون ہے, ناہید؟ اوکے. وکانت من البئر من البئر إلى قصر. إلى القصر. إلى القصر. From the well to the house. To the palace. قصر. To the palace. قصر پیلس کو کہتے ہیں. Okay. ہم لوگ گھروں پہ نام لکھتے ہیں نا پاکستان میں, اس لیے آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ گھر ہے قصر فلاں, تو قصر فلاں, قصر ناہید. اسی لیے تو گھر نہیں ہے وہ, گھر پہ ہم اپنے گھروں کو محل بنا دیتے ہیں. ہم دنیا میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں پہ نام بھی بنانے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میرا ہی گھر ہے اور کسی کا نہیں ہے. افسوس ہے ہم لوگوں پہ, اور کیا کر سکتے ہیں. چلیں آگے. وَكَانَتْ جَمَاعَةٌ تُسَافِرُ فِي هَذِهِ الْغَابَةِ. ہاں, اس کا کیا مطلب ہوا؟ A group of travelers. ٹریولرز نہیں لکھا ہوا ہے, ٹریولرز یہاں پر نہیں ہے, مسافر نہیں ہے, یہ تسافر ہے. تسافر از اے ورب, اس کا مطلب ہے ٹریول کر رہے تھے وہ لوگ, ٹھیک ہے نا, ٹریولنگ. A group was traveling. Yeah, a group was traveling in this forest. وَآتِشُوا فِي الطَّرِيقِ. They were thirsty on the way. وَبَحَثُوا عَنْ بِئْرٍ. And they looked for the well. They were looking for the well. وَرَأَوْا بِئْرًا. وَرَأَوْا بِئْرًا. And they saw the well. They saw a well. They saw a well. فَأَرْسَلُوا. البر اور بر میں یاد رکھیے نا, یہ شروع میں بئرًا. وَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا رَجُلًا لِيَأْتِي لَهُمْ بِالْمَاءِ. They sent to the well a man. To it a man to bring them the water. وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْبِرِّ. The man went to the well. وَأَدْلَى دلوه. He dropped the bucket. ہاں بس. اچھا, من البئر الى القصر. من کا مطلب فرام, اور الى کا مطلب ہے ٹو. فرام the well to the palace, یہ میں بتا چکی ہوں, قصر کا مطلب پیلس ہے, ٹھیک ہے. وَكَانَتْ جَمَاعَةٌ تُسَافِرُ فِي هَذِهِ الْغَابَةِ. کانت کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے کانت, آپ مجھے بتائیے کیوں فیمینن ہے؟ گروپ, جماعتن گروپ کے لیے. اور کیسے آپ کو پتہ لگا جماع جو ہے یہ فیمینن ہے؟ اس پہ تا مربوطہ لگا, مربوطہ ہے. ویری گڈ. تو وکانت الجماعۃ, سوری وکانت جماعۃ, اینڈ میں نے اپنی مرضی سے ال لگا دیا تو کانت ال بھی کر دیا. دیکھیں ذرا, یہ میری حالت ہے. وکانت جماعۃ, اور ایک جماعت یعنی ایک گروپ جو ہے جو کہ فیمینن ہے, اس لیے کانت یوز ہوا ہے. وکانت تسافرو. تسافرو کس سے نکلا ہے؟ اٹ از فارم 3, ورڈ فارم 3 آف سافرا یسافرو. سافرا یسافرو, ورنہ آپ نے پڑھا تھا نا سفر, سفر نہیں ہے, سافرا ہے, یسافرو. تو تسافرو کا مطلب ہے ٹریولنگ, جو ٹریول کر رہے تھے. اور چونکہ تسافرو کیوں ہے اور یسافرو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ فیمینن ہے,
ये भी जमात के मुतालिक बात हो रही है। तो याद रखिए सब चीज आप अरबिक में देखें, जब फेमिनिन होती है हर चीज फेमिनिन 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 होती है। वकानत जमाअत अग्री करती है जेंडर में, केस में, नंबर में। वकानत जमाअतुन तुसाफिरु, और एंड अ ग्रुप वाज ट्रैवलिंग फी हाज़िहिल गाबती, इन दिस फॉरेस्ट। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। हाज़िहिल देखें, गाबा भी क्या चीज है, फॉरेस्ट भी क्या चीज है, फेमिनिन है। कैसे पता चला, गाबती, इसमें भी क्या है, ता मरबूता है, ठीक है ना। गाबा ये भी फेमिनिन है, गाबती इज फेमिनिन, और फी की वजह से गाबती हो गया, ठीक है। व आतिशु फित तरीक़ी, आतिशु ठीक बताया था नाहिद ने कि दे वर थर्स्टी, एंड दे वर थर्स्टी फित तरीक़ी, ऑन द वे। तरीक बोलते हैं पाथ को, रास्ते को, वे को, जो भी आप कह लें। उर्दू में रास्ता कहते हैं, इंग्लिश में वे कहते हैं, पाथ कहते हैं। तो ऑन द पाथ इन या ऑन द वे, तो ये फी लिखा हुआ है लेकिन फी का मतलब ऑन द वे। अब इन द वे तो नहीं आएगा, ऑन द वे ही कहेंगे, इंग्लिश में ड्रब्स ट्रांसलेट करेंगे। व बहसु अन बिइरिन, बहसु दे वर लुकिंग फॉर, वो तलाश कर रहे थे किस चीज को, कुएं को, एक कुएं को। उन्हें पता नहीं था कि यहाँ कुआं है, वरना अल बिरी होता, लेकिन अल बिरी नहीं है, बिरीन है, ठीक है ना, अन बिरीन। तो एंड दे वर लुकिंग फॉर, so they were thirsty, so they were looking for, so भी कह सकते हैं, therefore भी looking कह सकते हैं। so वबहसु, so they were looking for a well, वरअौ बिरन, and they saw a well, and they saw a well। इसमें भी आप देखें बिरन, उन्होंने बिरन क्यों वहां पर मंसूब है, इसलिए कि it is the object of रअौ। फअरसलू इलैहा, फअरसलू, so they sent, या and they sent, क्या किया उन्होंने, किसको भेजा, इलैहा, उसकी तरफ, किसकी तरफ, वेल की तरफ। और देखें इलैहा, वेल जो है वो फेमिनिन है इसलिए इलैहा है, ठीक है, इलैहा है, इला, अच्छा, रजुलन, अ मैन, दे सेंट अ मैन टू द वेल, टू इट, लिया तिया, लिया तिया जो है इसका मतलब आपने पढ़ा था ना अता याती, लेकिन फिर आपने ये पढ़ा था कि अगर उसके साथ बी आ गया तो वो कैसे बन जाएगा, ब्रिंग, ठीक है ना, ब्रिंग। आपको याद है ना, अता याती टू कम, लेकिन अता याती के साथ जब बी लग जाता है उसका मतलब टू ब्रिंग, टू ब्रिंग फॉर देम बिल माई, ये बी आ गया ना, इसलिए लिया तिया लहुम, टू ब्रिंग फॉर देम वाटर। अब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप कहेंगे टू ब्रिंग वाटर फॉर देम, ठीक है, लेकिन लहुम पहले लिखा है, लेकिन बिल माई आप उसको पढ़ेंगे इंग्लिश में टू ब्रिंग वाटर फॉर देम। और लिया तिया, लिया ती है लेकिन लिया तिया क्यों लिखा हुआ है, इसमें फतहा क्यों है, लिया, लिया ती होना चाहिए था ना, लिया तिया है, फतहा है। किसी को मालूम है कि फतहा क्यों आया है, शायद मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक। जो ली है ना उससे पहले ली, ली का मतलब है फॉर, यानी ली का मतलब है जो उसको कॉज कर रहा होता है, जो उसकी वजह होती है। लिया तिया, टू ब्रिंग, ठीक है ना, टू ब्रिंग है इसीलिए, फॉर देम इसीलिए जब ली आ जाता है उसकी, यानी कोई सो आ जाता है या फॉर पर्पस ऑफ आ जाता है, तो ली जब आ जाता है तो उसके साथ जब आप ली करते हैं तो या तिया हो जाएगा, लिया ती नहीं होगा। ये भी आप लिख ले रूल, अगर रूल मैंने पहले नहीं बताया तो जो नया रूल बताती हूँ आप लिख लीजिए, क्योंकि पता नहीं कब ये रिपीट होगा कि नहीं होगा। लिया तिया, लिया ती के बदले लिया तिया, जब ली आ जाता है लिया ती के बदले लिया तिया हो जाता है, मंसूब हो जाता है। लहुम बिल माई, जा अर रजुलु इलल बिइरी, जा आप सबको मालूम है, एंड केम, एंड नहीं है, एंड केम रजुलु अर रजुलु, द मैन, इलल बिइरी, टू द वेल, द मैन केम टू द वेल। व अदला दलवहु, अदला का क्या मतलब है, अदला का मतलब है किसी चीज को अंदर झुकाना। जैसे आपको पता है जब कुएं में से पानी निकालते हैं तो क्या करते हैं, बाल्टी डालते हैं ना अंदर, तो वो बाल्टी जब डालते हैं उसको लोअर करते हैं, उसको नीचे करते हैं या उसको ड्रॉप करते हैं। तो इसको ये फॉर्म 4 है वर्ब का, अदला युदली, अदला युदली, यानी किसी चीज को झुका के अंदर डालना, किसी चीज को ड्रॉप करना। दलवा, दलवा होता है बकेट यानी बाल्टी, और दलवहु जो है उसका मतलब उसकी बाल्टी। द मैन केम टू द वेल एंड ही लोअर्ड या ही ड्रॉप्ड हिज बकेट, वो वो नहीं लिखा, आदमी कुएं की तरफ आया और उसने अपनी बाल्टी उसमें डाली। अब आप आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा भाई, आप खुद ही वॉलंटियर कर। मैं पढ़ लूं, अस्मा, अस्मा पढ़ लीजिए। वनज़ा दल्वा फैदा दल्लु फकीलतुन, फइज़द
دلو. فإذا الدلو ثقيلة. ماذا he pulled the bucket and no, indeed فإذا and بھی آپ کہہ سکتی ہیں, then بھی کہہ سکتی ہیں, ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ شیخ یاسر قادی ہمیشہ کہتے ہیں لو اینڈ بیہولڈ, سنا ہے نا ان کو, بس اس طرح. فَإِذَا, اور وہ کیا تھا, it lo and behold it was, اس طرح سے نا. then the bucket was heavy. وأخرجها فإذا he took it out, then the bucket غلام في الدلو. الدلوی he found a slave. فاؤنڈ نہیں لکھا ہوا ہے. فت دلوی کا کیا مطلب ہوا؟ فی کا مطلب کیا ہے؟ in the bucket. In the bucket. He found فاؤنڈ مت بولیں, فاؤنڈ مت بولیں, آپ خالی اتنا in the bucket. فَإِذَا ہو گیا نا, فَإِذَا there was ہو گیا نا, there was یا lo and behold جو بھی ہو گیا آپ کہنا چاہیں, there was in the bucket a slave. A slave. A slave یہاں پر نہیں ہے, چلے میں آگے بتا دوں گی, کیونکہ غلام کا مطلب ایک ینگ بوائے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے تو سلیو ہوتا ہے, لیکن سلیو نہیں سلیو نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا, غلام اردو میں ہم کہتے ہیں نوکر کو, عربک میں کیا ہوتا ہے سلیو؟ عبد ہوتا ہے. مجھے بھی آپ نے کنفیوز کر دیا, عبد ہوتا ہے, تو عبد نہیں ہے غلام. غلام مینس اے ینگ بوائے, ٹھیک ہے, آپ لکھ لیجئے. یہ اردو کا غلام نہیں ہے, عربک کا غلام ہے. غلام کا مطلب ہے اے ینگ بوائے. سب لوگ لکھ لیجئے, میں پھر بتانا بھول نہیں جاؤں. چلیے پھر آگے آگے پڑھیے. دہیش الرجل ونادى. Astonished, the man was astonished and said یا بشرا ہوگا تو پھر قالا ہوگا. نادا کا کیا مطلب ہے؟ نادا ندا he called out, اس نے پکارا. یا بشرا هذا غلام. Good news, this is a young boy. وفرح الناس جدا وأخفوه. And the people were very happy. They hid him. They hid him. اچھا چلے میں اتنا بھی پہلے بتا دوں, ایک سیکنڈ, کہاں سے آیا تھا؟ ونزع سے آپ نے شروع کیا تھا نا, ونزع, ہاں میرے خیال یہاں سے شروع کیا. ونزع الدلو. نزع کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب وہ بھی والنازعات, آپ کو پتہ ہے جو سورہ ہے اس میں بھی, والنازعات, اس میں بھی جب بتاتے ہیں کہ وہ کھینچ کے نکالنا, جب روح کو کھینچ کے نکالتے, کون نکالتے؟ فرشتے جب کھینچ کے نکالتے ہیں. ونزع, اور جب نکالا, کھینچا, یعنی ہی پلڈ. کس نے پل کیا؟ وہ آدمی جو کنویں کی طرف آیا تھا, جس نے اپنی بالٹی ڈالی تھی کنویں میں, who had lowered the bucket. Now اب کیا ہوتا ہے؟ وَنَزَعَ دَلْوَ, and he pulled the bucket, یا then he pulled the bucket. دونوں وا کا مطلب then بھی ہوتا ہے, verb بھی, and بھی ہوتا ہے, but بھی ہوتا ہے, جو ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت. then he pulled the bucket, اور پھر کیا؟ فَإِذَا الدَّلْوُ ثَقِيلَةٌ, and it was heavy. lo and behold it was heavy. وہ کیا تھا؟ کیونکہ وہ, اور ثقیلۃن آ گیا. ثقیلۃن کیوں آیا ہے؟ یہ تو اب کنویں کی بات نہیں کر رہے, تو ہم بکٹ کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ بکٹ بھی عربک میں فیمنن ہے, یاد رکھیے. اوکے, دلوا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ دلو جو چیز ہے وہ فیمنن ہے کہ نہیں ہے, لیکن عربس کے پاس آپ کو پتا ہے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر تا مربوطہ ہو. جس میں تا مربوطہ ہے وہ میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کیونکہ آپ کو پتا چل جاتا ہے. جس میں تا مربوطہ نہیں بھی ہے تو بھی دلو جو ہے, دلو یعنی بکٹ, یعنی پیل جس کو کہتے ہیں, بکٹ کہتے ہیں, بالٹی کہتے ہیں, وہ بھی فیمنن ہے, وہ بھی مؤنث ہے. تو اسی لیے ثقیلۃن آیا ہے, ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ بتائیے کہ دل وہ کیوں لکھا ہوا ہے, دل وا کیوں نہیں لکھا ہوا ہے؟ پہلے تو دل وہ لکھا ہوا تھا نا, پچھلے سینٹینس میں تھا جاء الرجل الی البئر وادلى دلوه, ابھی دل وہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ آلریڈی نون کہ وہ اس کی بالٹی, پہلے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی بکٹ سے لا رہا تھا, اب اس نے کہا بکٹ میں وہ تھا. نہیں, آپ مجھے گرامیٹیکلی جواب دیں ایک لفظ میں. بیکاز اس میں یہ وہ نہیں ہے, ورب کا آبجیکٹ نہیں ہے اس میں,
दलू उसने It is the subject. सीधी तरह बोल सकते हैं, it is the subject. Yeah. Subject is marfu. It's hard for me to explain, but I understood. ये आपको आता है, समझ आपको गई. आता है, आपको आता है. आप सिर्फ आप ज्यादा एक्सप्लेन करने लगे. सबा आपको आता है, बिल्कुल आता है. तो आप इसको इस तरह बताएं कि because it is the subject. क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है. जो सब्जेक्ट होता है, जो इसम होती है, जिसकी बात हो रही होती है, वो हमेशा मरफू होता है. Unless there is a reason. By default it is मरफू. जब भी आप कहेंगे वो मरफू होगा. लेकिन अगर उससे पहले मिन आ गया, इला आ गया, कुछ आ गया, ऐसी चीजें आ गई, आला आ गया, तो फिर वो चेंज हो जाता है, तब वो मजरूर बन जाता है. और अगर वो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो फिर वो मंसूब बन जाता है. ये चीजें दिमाग में बहुत याद रखें ग्रामेटिकली. सो वनज़अ अद-दल्वा फ़इज़ा अद-दल्वु थक़ीलतुन, एंड देन ही पुल्ड द बकेट एंड इट वाज अ हेवी बकेट. तो दल्वु सब्जेक्ट है, इसीलिए मरफू है. और जब वो ऑब्जेक्ट था इससे पहले वाले में, तो वो दल्वा था. और सकीलतन इसलिए है, क्यों सकीलतुन इसलिए है कि बकेट जो है वो अरबिक में फेमिनिन है. वअखरजहा एंड ही टुक इट आउट. अखरजा क्या मतलब है? निकालना. लेकिन ये खरजा नहीं है, ये अखरजा है. रिमेंबर, तो अखरजा, खरजा तो आपने पढ़ा हुआ है. अखरजा जो है फॉर्म 4 है, फॉर्म 4 है, तो उसका क्या बनेगा? अखरजा युखरिजु. अखरजा युखरिजु. और निकला किसे? खरजा. खरजा यखरिजु होता है, लेकिन यखरुजु होता है. ठीक है, खरजा यखरुजु होता है. लेकिन ये क्या है? फॉर्म 4 है, जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में. और उसमें अखरजा युखरिजु होता है. तो ये फॉर्म 4 है, और इसका मतलब ये है कि उसको निकाला. खरजा का मतलब है निकलना, और ये होता है इसको निकाला. वअखरजहा, और उसको निकाला. एंड ही टुक इट आउट. फ़इज़ा फ़िद्दल्वी गुलामुन, एंड वो ये लो एंड बिहोल्ड आके आप कह सकते हैं. एंड इन द बकेट आप कह सकते हैं फ़िद्दल्वी, इन द बकेट. देखें, पहले दलवा आया, फिर दलवू आ गया, अभी दलवी आ गया. तीन आपके पास, तीन सेंटेंसेस में दलवा के 3 फॉर्म्स आ गए. तो कितना आपके लिए आसान है समझना इसको, कि पहला वाला ऑब्जेक्ट था, दूसरा वाला सब्जेक्ट था, इससे पहले ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें फी आ गया, तो दलवी हो गया. आपको अपने लिए एग्जांपल करना है, तो आप सिंपल सेंटेंसेस से अपने एग्जांपल से सीखें. तो बिकॉज ऑफ द फी दलवी आ गया. एंड इट वाज अ बॉय, किधर है? इट वाज नहीं, फ़इज़ा फ़िद्दल्वी गुलामुन. एंड इट या देयर, जो भी कह लें, देयर वाज अ बॉय या इट वाज अ बॉय, दोनों ठीक है. अच्छा, दहिशा रजुलु व नादा. दहिशा का मतलब ये कि he was amazed, जिस तरह astonished या amazed, जिस तरह आई थिंक नाहिद ने किसने पढ़ा था, तो he was amazed, या वो हैरान हुआ, हैरत ज़दा हुआ, उर्दू में कह सकते हैं हैरान हुआ. दहिशा रजुलु व नादा, एंड ही कॉल्ड आउट. ये नादा भी फॉर्म 3 है. नादा युनादी, नादा नादा युनादी, यानी ये फॉर्म 3 है. इंशाल्लाह ये भी हम पढ़ेंगे. दहिशा रजुलु, एंड the man was astonished, he was amazed, वो हैरान हुआ, हैरत ज़दा हुआ. वनादा, और उसने पुकारा. and he called out, या बुशरा, या बुशरा हाजा गुलामुन. या बुशरा का क्या मतलब है? ओ गुड न्यूज, ओ खुशखबरी, इस तरह करके. हाजा गुलामुन, this is a young boy. हाजा, this is a young boy. इस पे मुझे याद है शेख अकरम ने बताया था, थोड़ा सा सुन ले, थोड़ा टेंजेंट पे जाने में मजा भी आता है. तो शेख अकरम बता रहे थे कि जो किस्सा खान होते हैं ना, जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, उनको अरबिक तो आती नहीं है, और वो मतलब वो कहीं के भी हो सकते हैं ना, वो उर्दू बोलने वाले, फारसी बोलने वाले, कुछ भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तान के, इंडिया के, ईरान के, कहीं के भी हो सकते हैं, जो भी हैं. जब वो किस्से सुनाने जाते हैं तो उसमें वो एग्जैजुरेट बहुत ज्यादा करते हैं. और क्यों एग्जैजुरेट करते हैं? क्योंकि जब वो एग्जैजुरेट करते हैं तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है स्टोरी. उसमें इतना लंबा चौड़ा कहते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है उनकी अटेंशन कैच होती है. एक तो अटेंशन कैच होती है, वो आते हैं, ओ ये क्या बोल रहे हैं. उसके बाद जब वो सुनते हैं वो और एक्साइटेड हो जाते हैं, और उनको ये होता है कि और सुनाए और सुनाए. तो इस तरह जो स्टोरी टेलर्स हैं उनका काम बनता चला जाता है, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं ना, जो आता है फिर उनको पैसे भी देता है. तो इस पर्टिकुलर स्टोरी में ये हुआ था कि उन्होंने, जब वो सुना रहे थे स्टोरी यूसुफ अलैहिस्सलाम का, तो वो ये भी सुना रहे थे साथ साथ कि वो एक कारवान आया. अभी आपने सुना ना, जमात आई, एक कारवान आया. वो जो कारवान आया, उस कारवान के उन्होंने एक एक बंदे के नाम भी लिख दिया अपनी तरफ से. किसी को पता नहीं उनका नाम क्या था, ना कुरान में ना हदीस में, लेकिन उन्होंने कहा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. उन्होंने कहा इस कारवान में एक का नाम फलां था, एक का नाम फलां था, एक का नाम फलां था, और एक का नाम था बुशरा.
اب آپ سنیں بشرا لڑکی کا نام نہیں تھا, لڑکے کا نام تھا, ایک کا نام تھا بشرا. تو اس سٹوری میں اب وہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ پڑھا یا بشرا ھذا غلام, جب اس کو وہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سٹوری کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا بشرا, او بشرا ادھر آؤ دیکھو, او بشرا, اس آدمی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا غلام, یہ ایک لڑکا ہے. شیخ اکرم نے یہ بھی بتایا کہ اسٹوری ٹیلرز جو ہے نا یہ لوگ جب, ابھی تو میں بھول جاؤں گی اس وقت, ابھی سے بتا دوں, یوسف کی کہانی, جو یوسف علیہ السلام کی کہانی, آپ کو پتا ہے نا ہمیں قرآن میں اور حدیث میں زلیخا کا نام نہیں ملا, ہم کو عزیز مصر کی بیوی کا نام آیا ہے. تو جب عزیز مصر کی بیوی کہتے ہیں, لیکن چونکہ آئی تھنک یہودی کسی سورسز میں زلیچا لکھا ہوا ہے تو اسی لیے اس کو زلیخا بنا دیا, اور پاکستان میں اور انڈیا میں ہر جگہ یوسف زلیخا کی تو شادی بھی کر دی لوگوں نے, پوری رات ان کو یوسف اور زلیخا سنتے رہو, صبح کہتے ہیں زلیخا مرد تھی کہ عورت, یہ بھی بنا دیا انہوں نے, زلیخا کے نام سے بہت چیزیں بنا دی ہیں. لیکن ان سٹوری ٹیلرز کے متعلق بتا رہی تھی کہ شیخ اکرم کہتے ہیں کہ جب انہوں نے زلیخا اور یوسف کی سٹوری بنائی تو اس میں انہوں نے زلیخا کی بیوٹی کے لیے بتایا تھا نا کہ خوبصورت تھی, عزیز مصر کی بیوی تھی, تو ان کے باڈی کو ڈسکرائب کیا, ایک ایک پارٹ آف دا باڈی کو ڈسکرائب کیا. آپ کو پتہ ہے جب وہ اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ایک عورت تھی, اس کے ہونٹ جو ہیں وہ پنکھڑیوں کی طرح تھے, اس کی آنکھ جو ہیں وہ مجھے اب یاد نہیں ہے کیا کیا, لیکن کچھ بھی جب ڈسکرائب کرتے ہیں, بٹ یہاں انہوں نے کیا ڈسکرائب کیا, زلیخا کی کمر کو ڈسکرائب کیا, اس کی ویسٹ کو ڈسکرائب کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ویسٹ تھی, اس کی جو کمر تھی وہ اتنی بیوٹیفل تھی, کہتے ہیں نا پتلی کمر, یا کہتے ہیں نا پتلی کمر بیوٹیفل ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں اتنی پتلی اس کی کمر تھی کہ جیسے آدھا بال. اب آپ امیجن کریں آدھا بال, ایک بال کتنا پتلا ہوتا ہے ہمارا ایک بال, اب اس بال جتنی کمر آپ امیجن کریں, اور پھر آپ امیجن کریں اس ایک بال کے لیے آدھا بال, اس کو بھی سلٹ کر دیں بیچ میں سے, اس بال کو سلٹ کیسے کریں گے؟ لیکن چونکہ وہ سٹوری ٹیلرز ہوتے ہیں, وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں, مبالغہ رائی سے کام لیتے ہیں, اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کتنا برا لگے گا اگر امیجن کریں کہ کسی کا آدھا بال جتنی کمر ہو, اسکیری ہو جائے گی نا. لیکن وہ اس کو خوبصورتی بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی کمر جو تھی وہ آدھے بال کی برابر تھی. ایک اور بات میں نے نوٹس میں لکھی ہوئی ہے کہ شیخ اکرم یہ بھی بتا رہے تھے کہ حمزہ کی جو کہانی ہے, حمزہ اور کیا نام ہے ان کی کہانی, جو اس کو 3-4 پیجز کی کہانی تھی صرف, لیکن کسی نے حمزہ, کوئی سٹوری ٹیلر تھے یا جو بھی تھے, رائٹر تھے کوئی, انہوں نے کہا اس کو میں خوب زیادہ وہ بنا دوں, اٹریکٹیو بنا دوں. انہوں نے وہ 3-4 پیجز کے بدلے جب سٹوری لکھی, آپ یقین کریں دس از دا ٹروتھ, یہ کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, انہوں نے بتایا کہ اس آدمی نے لکھنا شروع کیا حمزہ کی کہانی, اور وہ 35 والیومز آف دا بکس, ایک کتاب ایک والیوم ہم یہ پڑھ رہے ہیں, یہ کتاب ہمارے لیے کتنی مشکل ہے, وہ 35 والیومز تھی صرف اس سٹوری پہ, حمزہ کی سٹوری پہ. اور پھر اس کے بعد جب وہ ایک بندہ فوت ہو جاتا تھا تو دوسرا آتھر جو ہے اس کو کنٹینیو کرتا تھا, مطلب سارا ملا کے 35, ایک بندے نے 35 والیومز نہیں لکھے, one writer would die and another writer would continue writing the story. اچھا, یہ تو انہوں نے لکھ لی پوری کتاب, پوری 35 والیومز. اب ایک اور بندہ تھا جو اس سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا, اس نے کیا کیا, اس پوری کتاب کو اٹھایا 35 والیومز کو, اور اس کے اندر جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز تھے اس پہ اس نے وہ کتاب لکھی, ہر ورڈ کو ایکسپلین کیا. یہ حد ہوتی ہے, اپنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. اللہ کی عبادت میں وقت گزارو, اللہ کے ذکر میں وقت گزارو, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی اٹریکشن کے لیے, پیسے کمانے کے لیے, اپنی مشہوری کے لیے آپ یہ سب چیزیں کریں. اینی ویز, یا بشرا پہ آ کے مجھے یہ یاد آ گیا, اس لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی بات آپ کو بتا دی. پھر کیا تھا, وَفَرِحَ النَّاسُ جِدًّا وَأَخْفَوْهُ, یہ بھی پڑھ لیا تھا ناہید نے. وَفَرِحَ کا مطلب ہے وہ خوش تھے, they were happy, الناس who were happy, the people were happy, and the people were happy جِدًّا, the people were very happy. وَأَخْفَوْهُ, and they hid him. Again یہ جو اخفا یخفی, یہ فارم 4 ہے, یاد رکھیں, اخفا یخفی, it is form 4. آپ لکھ لیا کریں تاکہ جب انشاءاللہ ہم فارمز پڑھیں گے تو آپ کے پاس یہ لکھے ہوئے ہوں گے. نیکسٹ کون پڑھے گا بتائیے؟ جی میں پڑھ رہی ہوں, پڑھ لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَصَلُوا إِلَى مِصْرَ, and they reached to Misr. وَقَامُوا فِي السُّوقِ, and they and stood on in the market. وَنَادَوْا, and called. They called. They called. مَن يَشْتَرِي هَذَا الْغُلَامَ, who is going to buy this boy? مَن يَشْتَرِي هَذَا الْغُلَامَ, who is going to buy this boy?
اشترى العزيز يوسف بدراهم معدودة. And the Aziz bought Yusuf with few dirham or dirham. That was the currency, with few dirham. وباعه التجار وما عرفوا يوسف. I don't know. इसकी मुझे बाहू मुझे समझ नहीं आया. आपको याद नहीं है सोल्ड सेल करने को बोलते थे. शुरू में पढ़ा था हमने बायल असनाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद थे वो याद है. आइडल्स बेचते थे. हाँ बेचते थे. बा का मतलब बेचना होता है. बाहु तुजारू and sell and sold it to the business. To नहीं है. तुजारू is the subject. ताजिरों ने बेचा. Oh, and the tajir sold وما عرفوا يوسف. Sold बाहू लिखा हुआ ना. हु क्या हुआ? sold him. sold him. उनके नहीं उनको and sold him وما عرفوا يوسف. And this said I don't understand. Wama arafu and they did not know Yusufa. They did not know Yusuf. देखें आप यूसुफा है और वहां पर तो जारू है. आप इन चीजों को देखा करें कहाँ फतह है कहाँ पर दम्मा है. इससे पता चलेगा. वमा arafu and they did not know Yusufa. They did not know Yusuf. उनको पता नहीं था कि यूसुफ कौन है ना. और उन्होंने यूसुफ को बेचा. They did not know Yusuf. ये एक लाइन भी पढ़ लीजिए. जी. وذهب به العزيز إلى قصره. And the Aziz Bihil وذهب and they took Aziz to the palace. وقال لامرأته لامرأته وقال لامرأته and he called to the lady. Called his wife. Yeah. Akrimi Yusufa. Innahu waladun Rashidun. Akrimi is introduce. नहीं. अक्रीमी क्या होता है? करम क्या होता है? करीम क्या होता है? ओ करीम से अक्रीमी है. To honor, to respect. तो इसमें अक्रीम क्या होगा? अक्रीम का मतलब एक इंसान को आप मर्द को बोल रहे हैं. अक्रीमी औरत को बोल रहे हैं. चल मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ. आगे इन्नहु वलदुन रशीदुन. इन्नहु वलदुन रशीदुन and indeed he will be a Rashid boy. Rashid means guided. Rightly guided. Rightly guided or rightly guided boy. Indeed he will be a rightly guided boy. Will be nahi hai. He is. Okay. Indeed he is a rightly guided boy. तो इसमें क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है ना. कोई वर्ब होता तो फिर हमें ऐसे लगता कि विल बी होगा. लेकिन वर्ब नहीं है तो इसलिए ही इज है. सिर्फ इस जुमला इसमिया है. ठीक है ना. अच्छा कहाँ से आपने स्टार्ट किया? वसलू से स्टार्ट किया था. वसलू मतलब वसलू का मतलब दे अराइव्ड या दे रीच्ड. अराइव होता है नॉर्मली. दे एंड दे अराइव्ड. इसका सिंगुलर क्या था? याद है किसी को? जल्दी बोलें. वसलू का सिंगुलर क्या है? यसला. लिख लिया करें अपने साथ. वसला यसिलू. एंड दे अराइव्ड. कहाँ पर वो पहुंचे? इला मिस्र इन इजिप्ट. दे अराइव्ड इन इजिप्ट. वो मिस्र पहुंचे. वकामू फी सूक़ी वनादौ. वकामू और वो खड़े हुए. दे स्टूड. इसका याद है सिंगुलर क्या है कामू का? जल्दी. कामा यकूमु. हाँ याद रखा करें दोनों. इसका पास्ट टेंस भी और प्रेजेंट मुदारे भी दोनों. वकामू एंड दे स्टूड फी सूक़ी इन द मार्केट. दे सूक़ यानी मार्केट यानी बाजार में. दे स्टूड इन द मार्केट. वो बाजार में खड़े हुए. नादा और उन्होंने पुकारा. दे कॉल्ड आउट. मैं यश्तरी. कौन खरीदेगा? हाजल गुलामा. हु विल बाय. ये प्रेजेंट टेंस में है. ये भी अगेन ये फॉर्म है 8.
लिख लीजिए अपने पास फॉर्म 8 ऑफ इश्तरा यश्तरी, इश्तरा यश्तरी. Okay, who will buy hazal gulama, who will buy this young boy. किसी के माइक खुला हुआ है, जरा बंद कर लीजिए. मैं यश्तरी हाजल गुलामो, फिर गुलामा, फिर ये कह रहे हैं कौन इस बच्चे को खरीदेगा. एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ इंग्लिश में. And they arrived in Egypt and they stood in the market and they called out, who will buy this young boy, who will buy this young boy. ठीक है. अब नेक्स्ट है इश्तरल अजीजु यूसुफा बिदराहिमा मादूदतिन. इश्तरा, इश्तरा यानी he bought, इश्तरा he bought अल अजीजु. who bought? अल अजीज. अल अजीज कौन था? द गवर्नर या द मिनिस्टर. उसका नाम नहीं लिखा, अजीज उसका नाम नहीं था. ये अजीज है मिस्र था, यानी ये तो या गवर्नर था या मिनिस्टर था वहां पर मिस्र का. तो इश्तरल अजीजु, और अजीजु है और यूसुफा है. इससे पता चलता है कि अजीज ने खरीदा किसको? यूसुफ को. यूसुफ इज द ऑब्जेक्ट. तो अजीज ने, अल अजीज यानी जो कि गवर्नर था, मिनिस्टर था इजिप्ट का, उसने यूसुफ को खरीदा बिदराहिमा. दराहिम प्लूरल ऑफ दिरहम. और मादूदा, मादूदा का मतलब फ्यू, काउंटेड, मतलब जो अदद जिसको काउंट किया जा सके. कुछ दराहिम में, फ्यू दराहिम में उसने अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीद लिया. वबाअहू, और बेच दिया उनको, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया तुजारू, तुजार ने उनको बेच दिया. वमा अरफू यूसुफा, और वो यूसुफ को नहीं जानते थे. तुजार क्या चीज है? मर्चेंट या ट्रेडर. ठीक है, जो तिजारत करता है. उसका सिंगुलर क्या होगा? तुजार इज द प्लूरल. सिंगुलर क्या होगा? ताजिरुन. सबको पता है उर्दू में भी ताजिर कहते हैं. तो इसका इंग्लिश में मैं रिपीट करती हूँ. द मिनिस्टर या द गवर्नर बॉट him with a few या counted dirhams, and the merchants या the traders sold him and they did not know Yusuf. They bama arafu Yusufa and they did not know Yusuf. इस पे मुझे एक बात याद आई, छोटी सी बात बता देती हूँ कि मेरे एक भाई हैं, फ्रेंड के हस्बैंड हैं, वो भी हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं. तो वो बता रहे थे कि एक दफा पाकिस्तान में एक मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, और जुम्मे के खुतबे में वो जोर जोर से बोल रहे हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने बेच दिया, और फिर साथ साथ कहते हैं उनका ऑक्शन किया, और महंगे से महंगा उन पे दाम लगाए और उनको बेचा. ये कहाँ से उनको मिला मुझे नहीं पता. ये पाकिस्तान में मौलवी की ये हालत है. जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, तो मुझे उन्होंने पूछा, उन जिन भाई मेरे जो फ्रेंड के जो हस्बैंड है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या, कुरान में तो कुछ और लिखा हुआ है, मादूदा का क्या मतलब है? मादूदा का मतलब है काउंटेड. फ्यू दराहिम, हर किसी को पता है कि उनको बिल्कुल एक स्लेव की तरह बेच दिया गया फ्यू दराहिम पे. और वो जो है वो मौलवी साहब लगे में बोलते चले जा रहे हैं कि उनको इतना महंगा बेचा, ऑक्शन किया, और सबसे ज्यादा जब कीमत मिली उस कीमत पे बेचा. देखिए कहाँ से कहाँ स्टोरी पहुंच जाती है. और ये कोई स्टोरी टेलर नहीं है. आप सोच लें, ये मौलवी साहब हैं जो खुतबा दे रहे हैं. हमारे मौलवियों की ये हालत हो गई है कि उनको पता ही नहीं है. एक और दफा मुझे इससे एक और वाकया याद आ गया कि एक दफा यही एक खुतबा दे रहे थे, खुतबा नहीं दे रहे थे, आई थिंक वो बता रहे थे कि उन्होंने नमाज पढ़ाई पे उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जहाँ कुएं में छोड़ दिया ना, बस वहां पर जाके रुक गए. तो पीछे कोई अरबी था या पता नहीं कौन था, शायद कोई पाकिस्तानी था. तो जब खत्म हुई तो उन्होंने कहा, यार मौलवी साहब कम से कम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर तो निकाल लेते ना, वहां पर क्यों रोक दिया? ये तो वैसे ही लतीफा है, लेकिन वो तो देखिए सीरियसली वो कह रहे थे. अच्छा, वज़हब बिहिल अजीजु इला क़स्रिही, ये मैंने आपको कहा था जब सबा बता रही थी कि जब हम कहते हैं ज़हबा, ज़हबा का मतलब क्या होता है? ही वेंट. हाँ, ही वेंट. लेकिन ज़हबा के साथ जब भी लग जाता है उसका मतलब ही टुक. ये भी आप लिख लें अपने पास. ये बहुत सारी चीजें में बी लगने से फर्क पड़ जाता है. जैसे अता याती के साथ बी लगाओ तो डिफरेंट हो जाता है, ब्रिंग हो जाता है. यहाँ ज़हबा के साथ बी लगा दो तो टुक हो जाता है. तो ज़हबा बिही, ही टुक हिम. ही वेंट के साथ जब भी लग जाता है तो ही टुक हिम. तो ही टुक हिम किसको लेकर गए? अजीज मिस्र जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके गए. कहाँ लेके गए? इला क़स्रिही, अपने महल की तरफ, अपने महल पे लेकर गए. टू हिज पैलेस. और फिर क्या है? वक़ाल लिमराअतिही, और उन्होंने अपनी बीवी से कहा, लिमराअतिही, टू हिज वाइफ, अपनी बीवी से कहा, अक्रिमी. ये मैंने आपको बताया ना, अक्रिम का मतलब है फेलुल अमर है. अक्रिम यानी इसकी रिस्पेक्ट करो, इसकी इज्जत करो, इसको ऑनर दो, इसको मतलब इसका ख्याल रखो, इसको रिस्पेक्ट करो, इसको ऑनर दो.
और ये अक्रमा युक्रिमु, ये फॉर्म 4 है, आप लिख लीजिए फेलुल अमर ऑफ फॉर्म 4. तो अगर मर्द को बोलेंगे तो अक्रिम कहेंगे, और अगर औरत को बोलेंगे तो अक्रिमी कहेंगे. और ये फॉर्म कौन से? अक्रमा युक्रिमु, अक्रमा युक्रिमु फॉर्म 4. और उसके बाद कहा अक्रिमी यूसुफा इन्नहु वलदुन रशीदुन, बेशक ये इंडीड ही इज अ राइटली गाइडेड बॉय. आपको बताया था पहले भी कि रशीद का मतलब इंटेलिजेंट भी होता है. इंडीड ही इज इंटेलिजेंट. तो अपनी बीवी से कहा इनका ख्याल रखो, इनको रिस्पेक्ट दो. एक दफा इंग्लिश में रिपीट करती हूँ. एंड द गवर्नर या मिनिस्टर took Yusuf alayhi salam took him to his palace and said to his wife, honor Yusuf, indeed he is a rightly guided boy, yeah, indeed he is an intelligent boy. Next कौन पढ़ेगा? Can I ask you something? Sure. Yeah, ये जो वज़हब बिहिल अज़ीज़ु इला खसरिही, उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि he went with him, the Aziz went with him. नहीं, took है. नहीं बोल सकते. नहीं. Okay, so it completely changes the meanings. took है, he took. जिस तरह bring था ना, bring था ना, आया के साथ भी आ गया, तो अता के साथ भी आ गया, अता brought. तो जैसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उनको किताब दी गई, वो बॉट किताब लेकर आए ना, जब रसूल आए किताब लेकर आए, तो उनके साथ ये होता है ना, आती भी आ जाता है ना, कि उन किताब लेकर आए. तो वो वेंट, वो लाए बोल सकते हैं, लेकिन करेक्ट होगा ज्यादा ये. ही वेंट विद हिम, तो हम कहेंगे ना ही वेंट विद हिम, तो हम फिर यूसुफ अलैहि सलाम के ऊपर आ जाएगा ना, ज़हबा यूसुफु मअल अजीजी. ठीक है, ज़हबा यूसुफु मअल अजीजी, यूसुफ वेंट विद द अजीज. आ गई समझ में? जी. लेकिन यहाँ अजीज टुक यूसुफ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो गए ना. राइट, गॉट इट? तो वर्ब से, इससे, इन चीजों से हमको आस्ते आस्ते सीखने को मिलता है इंशाल्लाह. अच्छा, अभी टाइम है, चलें. कौन पढ़ रहा है नेक्स्ट? किसने नहीं पढ़ा भाई? आंटी, आई एम गोना गो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कम ऑन, आप पढ़िए. अल वफाउ वल अमानतु. I don't know the afau meaning. अमानतु नहीं कहिएगा, अतिया अमानतु मत कहिए, अमानतु, अलिफ नहीं है ना, अमानतु. Okay, so I don't know the meaning of al wafa'u. means loyalty या trust, आप कह लेना loyalty. Okay, loyalty. वफा, Okay, and वफादारी जिसको कहते हैं ना, वफा, loyalty. okay, okay, loyalty. And wa amanatu, amanatu is trust. Trust, yeah. Amanat, so warawadat imra'atu very good. al azizi yusufa alal khiyanati. And walakinna yusufa aba waqala kalla. So रावदत आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको पता नहीं है. रावदत का मतलब है, एक तो रावदा है, रावदत मीन्स शी, राइट है. जैसे हम कहते हैं ना, चीज में ता लगा देते हैं तो इट बिकम्स फॉर अ फीमेल. वो रावदत एंड शी टेम्प्टेड. इसकी फॉर्म 3 है, फॉर्म 3 ऑफ रावदा युराविदु. रावदा युराविदु ऑफ फॉर्म 3 है वर्ब का. अच्छा, फिर क्या आपने पढ़ा? So the wife of the governor tempted, the wife of the governor tempted Yusuf ala upon khiyanati is like khiyana means to cheat, to cheat. Yeah, to cheat. Walakinna, because however, walakinna is however. Yusuf aba refused. Yes. Waqala, and he said kalla. Kalla means no. Never. Okay, never. No, never. Never. And ana la akhunu sayyidi innahu ahsana ilayya wa akramani inni akhafu Allah. Ana means I. Ana la, I will not. Ukhunu is
I will not cheat, I will not betray. Sayyidi. Okay, betray. Sayyidi. Sayyidi is my master. Oh, my master. Okay, Sayyidi. Innahu, indeed, he ahsana ilayya. He was good to me. Excellent. Wa To akramani. me. Was excellent to me. Sirf good nahi hai, ahsana, the best. He is best to me. Okay, he is best to me, and he akramani. He honored me. Very good. Huh. Inni, indeed, akfu. I akhafu laha. I fear Allah. आपने अल्लाह क्यों पढ़ा यहाँ पर? यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, मेरे उसमें तो नहीं लिखा हुआ है. Oh yeah, I don't know, auntie. I just read. That's correct. Akhafullah. Because if you say akhafullahu, what does it mean? Allah was afraid. You know? Yeah. Okay. Yeah. So it's like khaful. It's not akhafu, lekin Allahu आप कैसे कह सकते हैं? It won't be a correct sentence though. लेकिन akhafullahu नहीं हो सकता, akhafullah आएगा, ठीक है ना? Because akhafu जो है, it's a verb, और verb के बाद जो object है, Allah से डरना. I am scared of Allah. I am afraid of Allah. I fear Allah. ठीक है. अब मैं ये करती हूँ, इंशाल्लाह. Loyalty and trust. Al-wafa wal-amanatu. अल-वफा का मतलब है, वफा जैसे उर्दू में हम कहते हैं वफादारी या वफा, लॉयल्टी, वफादारी. और अमानत तो आप सबको मालूम है, अमानत या ट्रस्ट, ठीक है ना? तो अल-वफा वल अमानतु मीन्स लॉयल्टी एंड ट्रस्ट. वरावदत इम्राअतुल अजीजी यूसुफा अलल खियानती. वरावदत, and she tempted. आपको बता दिए, it's form 3 of रावदा युराविदु. इम्राअतुल अजीजी. इम्राअतुल अजीजी का क्या मतलब है? The wife of अजीज. इदाफा है, जिस तरह हम कहते हैं the possessor, जिस तरह कहते हैं, इसलिए इम्राअतुल अजीजी आया है, ठीक है ना? अजीज की जो वाइफ. यूसुफा, यूसुफ यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यूसुफा इज द ऑब्जेक्ट. और तो टेम्प्ट किया, किसने टेम्प्ट किया? अजीज मिस्र की बीवी जो है, उसने यूसुफ को टेम्प्ट किया, यूसुफ को सेड्यूस करने की कोशिश की. उसने शी ट्राइड टू सेड्यूस हर अलल खियानती, ऑन चीटिंग, ऑन खियानत, ऑन बिट्रेइंग, ऑन चीटिंग. उर्दू में खियानत कहते हैं वो खियानत को, लेकिन यहाँ असल में ये कि खियानत करना, क्योंकि ये अमानत, एक अमानत है ना, और ये एक अजीज मिस्र ने लाके अपनी बीवी को दिया कि इनका ख्याल रखो, इनको ऑनर करो. तो इसीलिए जब उन्होंने कोशिश की सेड्यूस करने की यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वलाकिन ना यूसुफ अबा, लेकिन, वलाकिन का मतलब है लेकिन, जैसे उर्दू में बट कहते हैं या हाउएवर कहते हैं, जैसे अतिया ने हाउएवर का. अब्बा का मतलब क्या है? अब्बा का मतलब ही रिफ्यूज्ड. याद है ये लफ्ज कब यूज होता है कुरान में, किसके लिए? अब्बा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन. याद है? अब्बा वस्तकबरा शैतान के लिए, इब्लीस के लिए. जब उसने सजदा नहीं किया तो उसको क्या कहा? अल्लाह ताला कहते हैं अब्बा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, कि उसने रिफ्यूज किया. तो अब्बा मतलब ही रिफ्यूज, और उसने क्या कहा? वकाला, एंड ही सेड, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला. कल्ला मींस इधर नेवर. इसको मैं इंग्लिश में एक दफा रिपीट करती हूँ. एंड द गवर्नर्स वाइफ tried to tempt Yusuf on cheating, for cheating, but Yusuf alayhi salam refused, and he said never. Ana la akhunu sayyidi. La akhunu, I will not betray, I will not cheat. ये भी आप लिख लीजिए, खाना यखूनु. खाना यखूनु चीट करने को कहते हैं, किसी खयानत करने को कहते हैं, खाना यखूनु. तो उन्होंने कहा कि नहीं, I will not cheat सय्यदी. सय्यदी क्या होता है? सय्यद, my master, my master. क्यों मास्टर थे? क्योंकि इनको खरीद के लाए थे ना, तो ये तो उनके स्लेव हो गए. उन्होंने बहुत अच्छी तरह रखा, बेटे की तरह रखा, लेकिन असल में तो क्या, स्लेव थे. जब बेचते थे तो स्लेव को बेचते थे. I will not betray, I will not cheat my master. इन्नहु अहसना इलैया, indeed he was excellent to me. ये मेरे साथ बहुत अच्छे थे. मैं, he was excellent, और इसका ये फॉर्म 4 है, याद रखें. अहसनु युह नहीं, अहसना युहसिनु, अहसना युहसिनु. ओके, ये फॉर्म 4 है. जहां भी अह से शुरू होता है ना, अलिफ से स्टार्ट होता है, याद रखें ज्यादातर ये फॉर्म 4 ही बनता है. जैसे अखरजा, युखरिजु, इसी तरह अशरफा, युशरिफु, इसी तरह अहसना, युहसिनु. और क्या, किससे ये वर्ड से बना? हसना.
हसन का मतलब है गुड या एक्सीलेंट, उससे बना है। तो बेशक वो यानी जो मेरे मास्टर हैं, अहसना इलैया, मेरे लिए बहुत, उन्होंने मेरे साथ बहुत नेकी की है, इलैया व अक्रमनी एंड ही हैज ऑनर्ड मी। अगेन अक्रमा, अक्रमा नी का मतलब मेरे लिए आया, मुझे, क्योंकि अक्रमी बोलेंगे डिफरेंट हो जाए, अक्रमनी, उन्होंने मुझे ऑनर किया है। अगेन ये फॉर्म 4 है, जिस तरह अहसना था ये अक्रमा है, वो युहसिनु था ये युक्रिमु है। तो फॉर्म 4 क्या बनेगा? अक्रमा युक्रिमु। तो कह रहे हैं कि बेशक उन्होंने मेरे साथ नेकी की है, ही वाज एक्सीलेंट टू मी एंड ही ऑनर्ड मी। और फिर क्या कहते हैं? इन्नी, बेशक मैं, अखाफुल्लाह, आई फियर अल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। एक दफा इंग्लिश में रिपीट करती हूँ, आई विल नॉट बिट्रे, आई विल नॉट चीट माई मास्टर, indeed he was excellent to me, very good to me, and he honored me, indeed I fear Allah। अभी आगे कौन पढ़ेगा जल्दी, अभी टाइम है, शाबाश पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं? पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, मैं ट्रांसलेट कर दूंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वगज़िबत इमरातु, गज़िबत इमराअतु, वगज़िबत इमरातु अल अजीज, इमराअतुल अजीजी, एक साथ अजीज, ये पूरा जुड़ा हुआ है। गज़िबत इमराअतुल अजीजी, तीनों वर्ड्स को जोड़ना है आपको। वगज़िबत इमरातुल अजीज, हाँ, वशक्कत इला ज़ौजहा, ज़ौजिहा, व अरफल अजीजु अन्नल मराअता काज़िबतु, मरअता काज़िबतु, काज़िबतुन, व अरफा अन्ना यूसुफा अमीनुन, फ़क़ाला लिज़ौजिही इन्नकी कुन्ति मिनल खातिईन, खातिईन। ठीक है, चलें, आप अपनी माइक बंद कर लिए तो इंशाल्लाह मैं आगे करती हूँ। वग़दिबत इमराअतुल अज़ीज़ी, गदिबत एंड शी वाज, गदिबा होगा तो क्या होता है? गदिबा ही वाज एंग्री, लेकिन यहाँ पर क्या था? शी वाज एंग्री, इसलिए गदिबत आ गया। ठीक है, गदिबत, शी बिकेम एंग्री या शी वाज एंग्री, बट हु वाज एंग्री? इमराअतुल अज़ीज़ी, यानी द वाइफ ऑफ द अजीज, द वाइफ ऑफ द मिनिस्टर या गवर्नर, जो भी है। सो अब आप इसको किस तरह पढ़ेंगे? एंड द गवर्नर्स वाइफ became angry, या आप कहेंगे and the minister's wife was angry, जो भी है। वह शकत, शकत क्या चीज होती है? शकत जैसे शिकवा नहीं करते हैं, शका यशकू, आप लिखें इसमें शका he complained, यशकू he complains, शका यशकू, शका he complained, यशकू he complains, और जब शकत आ गया he she complained, okay, शकत, and she complained इला ज़ौजिहा, to her husband। देखें, खुद सेड्यूस कर रही थी और अब जब उनके हस्बैंड आ गए सामने तो अपने हस्बैंड को कहते हैं वग़दिबत इमरातु, गुस्से में आई, एंड द गवर्नर्स वाइफ बिकेम एंग्री एंड शी कंप्लेन्ड टू हर हस्बैंड। वअरफ़ अल अज़ीज़ु अन्नल मरअता काज़िबतुन, वअरफ़ा, एंड क्या चीज होगा? एंड द गवर्नर न्यू अन्ना दैट अल मरअता, देखिए आपको पता है इमराअतुन, लेकिन जब अल आ जाता है अल मरअता आ जाता है। उनको पता था अल मरअतु होता है, लेकिन अल मरअतु के बदले अल मरअता क्यों है? क्योंकि अन्ना आ गया उससे पहले। अब याद है कि जब आप कुरान पढ़ रहे हो ना, प्लीज आप लोग हर लाइन में, हर सेंटेंस में आप लोग देखते जाएं कि यहाँ दम्मा क्यों है, फतह क्यों है, कसरा क्यों है। मेरी तो बहुत आदत हो गई है, जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये क्यों ऐसा आ रहा है ना। और अन्नल मरअता है, मरअतु होना चाहिए लेकिन अन्ना, इसलिए अन्नल मरअता। व अरफा अजीजु, और अरफ अल अजीजु, और अजीज ये जानता था, अन्नल मरअता काज़िबतुन, काज़िबतुन का क्या मतलब है? इज लाइंग, शी इज लाइंग, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, उनको मालूम था। और इसीलिए वअरफ़ अल अजीजु, एंड द गवर्नर या द मिनिस्टर न्यू दैट द वुमन, यानी उसकी वाइफ जो थी, द वुमन काज़िबतुन वाज लाइंग। वअरफ़ अन यूसुफ़ा, ये नहीं पढ़ा आपने? हाँ पढ़ा था। वअरफ़ अन यूसुफ़ा अमीनुन, और वो ये भी जानते थे, वो अजीज मिस्र को ये भी पता था, वअरफ़ अन्ना यूसुफ़ा, दैट यूसुफ वाज अमीन। अमीन का क्या मतलब है? अमानतदार, ट्रस्टवर्दी। एंड ही न्यू दैट यूसुफ वाज ट्रस्टवर्दी, और वो जानते थे कि यूसुफ जो है वो अमीन है, वो अमीन है यानी वो ट्रस्टवर्दी है, अमानतदार है। फ़क़ाला लिज़ौजिही, तो उन्होंने कहा, किसने कहा? अजीज मिस्र ने कहा, ही सेड लिज़ौजिही, टू हिज वाइफ, इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन,
innaki, indeed you, اور دیکھیں innaka نہیں innaki ہے. innaki کیوں ہے؟ کیونکہ وہ feminine ہے. innaki, you feminine, kunti, you are again feminine, kunti min al-khati'in, of the sinners یا from the sinners. خاطئین جو ہے اسم فاعل ہے اور فاعل کی جمع ہے. تو خاطئین فاعل، اسم فاعل اور فاعل کی جمع. indeed یعنی بے شک آپ جو ہیں، آپ ہیں کس میں سے ہیں؟ گناہگاروں میں سے ہیں. indeed, so he said to his wife, indeed you are from the sinners. اب خطا ہم نارملی اردو میں جب یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خطا کا مطلب ہے مسٹیک، لیکن عربک میں نہیں ہے. خطا کا مطلب یہ کہ ہم نے جب کوئی سن کیا. دو قسم کے خطا ہیں، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، میں غلط بات نہ کر دوں، لیکن دو قسم کے خطا ہیں. ایک جو ہوتا ہے انٹینشنلی ہوتا ہے، ایک ان انٹینشنلی ہوتا ہے. تو اس میں وہ یوز کر رہے ہیں کہ اس کی جو تمام ٹرانسلیشنز ہے اس میں سنر لکھا ہوا ہے، اور سن اس وقت لکھتے ہیں جب انٹینشنلی کوئی گناہ کرتے ہیں، اور اگر انٹینشنلی نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کو مسٹیک کہتے ہیں. تو اچھا آگے پڑھیے. میرا خیال ہے اب یہ ہمارا نیکسٹ. میں پڑھ لوں؟ کون بول رہے ہیں؟ شمیم. کون بول رہے ہیں؟ شمیم. شمیم، ہاں پڑھ لیجیے. وعرف وعرف یوسف فی مصر بجمالہ. And Yusuf was known in Egypt for his beauty. وَإِذَا رَآهُ أَحَدٌ قَالَ. And when anyone saw him, said, مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. This is not a human. He is but a noble angel. وَاشْتَدَّ غَضَبُ الْمَرْأَةِ. And the woman became angry. وَاشْتَدَّ, what is وَاشْتَدَّ؟ اشتد آپ کو شاید میں نے پہلے بتایا تھا. اشتدہ جو ہوتا ہے جو انکریز یا انٹینسیفائی کسی چیز میں تھا پہلے، سیویئرٹی کسی چیز کی بتانا. وَقَالَتْ لِيُوسُفَ. And she told to Yusuf, إِذَنْ تَذْهَبَ إِلَى السَّجْنِ. She ordered إِلَى السِّجْنِ. إِلَى السِّجْنِ. دیکھیں یہ پوائنٹ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اسما نے یاد دلایا تھا. میں کلاس میں میں بتانا چاہ رہی تھی لیکن میں اس وقت آگے چلی گئی تو میں بھول گئی کہ جب آپ کا شدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہیں بھی، سب لوگ اچھی طرح سن لیں، جب شدہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور شدہ کے نیچے ایک لائن ہے اس کا مطلب وہ کسرہ ہے. ہماری پاکستان اور انڈیا کی کتابوں میں، بنگلہ دیش کی کتابوں میں یہ ہوتا ہے کہ شدہ اوپر ہوتا ہے اور سین کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، یعنی زیر جو ہم کہتے ہیں جس کو سین کے نیچے ہوتا ہے. لیکن عربک بکس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کبھی بھی زیر نیچے اس طرح نہیں آئے گا. اگر شدہ ہے تو شدہ کے نیچے وہ لگا دیا، اس کا مطلب زیر ہے یعنی کسرہ ہے، اور شدہ کے اوپر ہے اس کا مطلب فتحہ ہے. یہ یاد رکھیے گا. ہاں میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو لکھا تھا اس میں، تو اسی لیے لوگ جب کہہ رہے تھے نا لاسٹ ٹائم کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، ہمارے پاس تو فتحہ ہے، وہ فتحہ نہیں تھا، وہ کسرہ ہی تھا. اینڈ دین آئی سینٹ اے نوٹ آن دا گروپ کہ مجھے اسما نے یاد دلایا، تو کچھ لوگوں نے تھینکس بھی کہا، پڑھ لیا تھینکس کیا یا ویسے ہی تھینکس کر دیا. اذن تذهب الى السجن. تو اس لیے اچھا ہوا موقع ملا تو ابھی ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. اذن in that case تذهب she نہیں ہے، اس وقت you ہے. No, so he was sent. You will go. You will go. تذهب. Oh, so you will go to prison. To the prison. To the prison. قال يوسف السجن أحب إلي. یا تھوڑا سا یہ میں ریپیٹ یہ کر لوں پھر نا تاکہ پھر آگے کرتے ہیں. عرفہ یہاں سے آپ نے شروع کیا تھا نا. عرفہ آپ نے ٹھیک کہا تھا. عرفہ کا مطلب ہے was known. اب دیکھیں یہ کون سا فعل ہے، کون سا فعل ہے، کون سا ٹائپ آف فعل ہے؟ عرفہ. آپ نے تو ابھی تک عرفہ پڑھا ہے نا، عرفہ یعرفو پڑھا ہے نا. عرفہ کا مطلب he knew، یعرفو he knows یا he will know. تو عرفہ کیا ہے بتائیے کوئی، کون سا فعل ہے یہ؟
we did it in lesson 19. फेल मजहूल, फेल मजहूल, ठीक है ना, फेल मजहूल याद रखें, ऐसा नहीं जवाब देंगी 19 आपको तो पता था, आपने करेक्ट जवाब दिया था, was known, ठीक है ना, was known. मजहूल यानी जिस तरह आपको होता है मफऊल जिस तरह मजहूल है इस तरह, तो he was known. अब क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है कि वउरिफा यूसुफु, and यूसुफ was known. यूसुफ मशहूर था, या यूसुफ के मुतालिक ये बात मशहूर थी, फी मिस्र, इन इजिप्ट. यूसुफ के मुतालिक लोग ये जानते थे, बी जमाल ही, लोग जानते थे उनको पहचानते थे. यूसुफ पहचाने असल में उर्दू में होगा, और यूसुफ पहचाने जाते थे, इजिप्ट में पहचाने जाते थे, बी जमाल ही, फॉर हिज ब्यूटी, फॉर हिज गुड लुक्स. अपनी खूबसूरती की वजह से यूसुफ मिस्र में पहचाने जाते थे. व इज़ा रआहु, और जब उनको कोई देखता था, तो अहदुन, कोई भी देखता था, काला, तो वो कहते थे, क्या कहते थे, मा हाजा बशरन, ये कोई इंसान नहीं है. बशर का मतलब है ह्यूमन बीइंग, तो ये कोई इंसान नहीं है, यानी ह्यूमन बीइंग नहीं है. इन हाजा, not this is इल्ला, एक्सेप्ट या बट, मलकुन करीमुन. मलक क्या होता है, एंजल या फरिश्ता, करीम का मतलब नोबल या ऑनरेबल, ठीक है ना. अब क्या बना, ये पूरा ये सूरह यूसुफ में है, इसी तरह से दिया हुआ है. एंड यूसुफ वाज नोन इन इजिप्ट फॉर हिज ब्यूटी, या आप कहें फॉर हिज गुड लुक्स. एंड व्हेन एनीवन सॉ हिम ही वुड से, this is not a human being, rather this is a noble angel, this is a noble angel. واشتد غضب المرأة وقالت ليوسف. इस पे क्या हुआ, इश्तद्दा, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्म 8 होता है, इश्तद्दा यश्तद्दु, लिख लें अपने पास, इश्तद्दा यश्तद्दु, उसका मतलब कि शिद्दत इख्तियार कर गई, शिद्दत इख्तियार कर गई, यानी इंक्रीज हो गई, इंटेंसिफाई हो गई, सिवियर हो गई. रिमेंबर हमने ये पढ़ा था, और किस लफ्ज से निकलता है, शदीद, शदीद से इश्तद्दा यश्तद्दु, फॉर्म 8 है. तो एंड द एंगर ऑफ द वुमन, वही उसकी बात कर रहे थे जो अजीज मिस्र की बीवी है. एंड द एंगर ऑफ द वुमन इंटेंसिफाइड या इंक्रीज्ड. एंड वकालत ली यूसुफा, एंड शी सेड टू यूसुफ, और उसने यूसुफ से कहा, इज़न, इन दैट केस, अभी आप ये कह रहे हैं, तो इसलिए इज़न, इन दैट केस, तज़हबा, यू विल गो. आपको पता है ना, जब हम कहते ता, उसमें फीमेल भी हो सकता है और यू भी हो सकता है, दोनों के लिए यूज होता है. इज़न तज़हबा इला सिजनी, इन दैट केस यू विल गो टू द प्रिजन, इन दैट केस यू विल गो टू द प्रिजन. तो इसलिए अब इस वजह से आपको जेल जाना पड़ेगा या कैद में जाना पड़ेगा. सो अब ये देखें, एक और बात है, तज़हबा लिखा हुआ है, तज़हबू नहीं लिखा हुआ है. हमने ये पढ़ा नहीं था इस वक्त कि ये तज़हबा क्यों है. तज़हबू तो हमें पता था, लेकिन अब तज़हबा क्यों है, कोई गैस कर सकता है? शायद आप नहीं गैस कर सकें क्योंकि हमने रूल पढ़ा नहीं है, ठीक है. ये रूल, ये जब इज़न जब आता है, लिख लें अपने पास प्लीज, मुझे फिर याद नहीं रहेगा कि ये मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा. इज़न जब कहते हैं ना, इज़न का मतलब है इन दैट केस, यानी अगर ऐसा हुआ तो, इसके नतीजे में इज़न तो आएगा, फिर तज़हबा आ जाएगा. जैसे अन्ना के साथ है, इन्ना के साथ आता है ना, का अन्ना के साथ आता है, तो तज़हबू नहीं आएगा, तज़हबा आएगा. So the verb after the verb after the word isn't takes a fatha. ये लिख लीजिए आप, remember this rule. illa sijni, to the prison. थोड़ा सा रह गया है, कौन पढ़ेगा? नाहिद आप पढ़ लीजिए. काला यूसुफु, Qala Yusufu, and Yusuf said, As-sijnu ahabbu ilayya. The prison is better for me. I love. हाँ, ये बोले ना, dearer to me, more beloved. Dearer to me, yeah. Beloved to me. Wa ba'da ayamin ra'aya. आप नहीं, पिछली दफा भी करेक्ट किया था, उससे पहले भी आप याद रa'al azizu. And after that day, Aziz, the governor saw. After that day नहीं, बाद अय्यामिन क्या हुआ? After a few days, some days, Aziz saw that an yursila Yusufa. अच्छा लफ्ज़ है ना, रआ,
یہ رعا کا مطلب آپ کو میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا جب ہم نے پڑھا تھا کہ رعا کا مطلب دیکھنا بھی ہوتا ہے, پرسیو کرنا بھی ہوتا ہے, کنسیڈر کرنا بھی ہوتا ہے, اور رائے بھی ہوتی ہے, کسی کی اوپینین بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو رعا ہی کنسیڈرڈ. اب اس کو نظر تو نہیں آ رہا ہے نا, لیکن اس کو لگ رہا ہے, اس کو فیل ہو رہا ہے, لگ رہا ہے, کنسیڈر کر رہا ہے. بعد ایام رأى العزیز, یعنی کہ کچھ دنوں کے بعد رأى العزیز, عزیز کو یہ خیال آیا, عزیز نے یہ کنسیڈر کیا. آگے پڑھیے. ان یرسل یوسف الى إلى السجن, ہاں, that he is that he sent Yusuf to the prison. وَكَانَ الْعَزِيزُ يَعْرِفُ, and Aziz knew, used to know أَنَّ يُوسُفَ بَرِيءٌ, that Yusuf was innocent. وَدَخَلَ يُوسُفُ السِّجْنَ, and Yusuf entered the prison. ویری گڈ. چلیں اب ہم کہاں پر تھے؟ وبعد ایام, یہاں سے نہیں. قال یوسف یوسف said السجن احب الی. اس نے کیا بولا؟ السجن, the prison is احب. آپ نے دیکھا نا, اکثر ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. احب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ پسند ہے. تو احب کا مطلب dearer to me, more dearer, الیہ to me, الہ اور الیہ to me. السجن احب الیہ, the prison is dearer to me. اس کا مطلب the prison is more beloved to me. اسم تفضیل آ گیا یہاں پر, احب آ گیا, اسم تفضیل لکھ لیجئے اپنے پاس, کہ یوسف نے کہا کہ میرے لیے, میرے خیال ہے کہ میرے لیے جو ہے, مجھے prison, مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے. Yusuf said the prison is dearer یا more beloved to me, میرے لیے, مجھے جو ہے قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے. کس چیز سے؟ یعنی اس چیز سے کہ میں غلط کام کروں. وبعد ایام, اور after a few days, after some days, یا after a few days, رأى العزیز, the Aziz یا the governor considered, یعنی he thought, ان یرسل, that he would send, or he sends Yusuf إلى السجن, to the prison. یعنی اس وقت نہیں بھیجا فوراً, اس کے بعد انہوں نے, اور یہ آپ کو پتا ہے نا, یرسلو تھا, ارسلا یرسلو, لیکن یہ یرسلا کیوں آ گیا؟ ان کی وجہ سے. لکھ لیا کیجئے پلیز یہ, کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے اخرجا یخرجو تھا, اشرفا یشرفو تھا, ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا, تو اس میں بھی ارسلا یرسلو ہوتا ہے, لیکن یرسلو جو ہے وہ چینج ہو گیا, یرسلا بن گیا ان کی وجہ سے. تو کیا بنا؟ And after a few days, after some days, the governor considered, he felt that he would send Yusuf to the prison. اور ان جو ہے اس کی وجہ سے یرسلا بن گیا. وَكَانَ الْعَزِيزُ يَعْرِفُ أَنَّ يُوسُفَ بَرِيءٌ. وَكَانَ, and, اور کانا کے ساتھ پھر آ گیا يَعْرِفُ. آپ کو پتہ ہے جب کانا کے ساتھ آپ ورب لگاتے ہیں, present tense verb, تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ used to بن جاتا ہے, وہ past tense بن جاتا ہے اور continuous past بن جاتا ہے. تو وَكَانَ الْعَزِيزُ, and the governor used to know, used to know, anna, that Yusufa bariun, that Yusuf was innocent. بری ان کا کیا مطلب ہے؟ innocent. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا بری الزما, بری الزما ہو گیا, یعنی وہ اس کے اوپر کوئی نہیں نکلی کوئی, اور وہ اس کی جو معصومیت ہے یا جو بھی ہے وہ ثابت ہو گئی. So دخل یوسف السجن, and Yusuf entered, دخلا کا مطلب entered, آپ سب کو معلوم ہے, یوسف, and دخل یوسف السجن. اب سجنا کیوں ہے؟ again because it is the object of the verb. کون سا verb ہے؟ دخلا. وَدَخَلَ يُوسُفُ السِّجْنَ. اگر ادھر فی آ جاتا تو کیا ہو جاتا؟ وَدَخَلَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ. ٹھیک ہے, یہ وہ بھی کریکٹ ہے. وَدَخَلَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ, and Yusuf entered in the prison. وہ بھی ان کو, اور اس میں کیا ہے؟ یوسف entered the prison. جب ڈائریکٹ ورب آ جاتا ہے, ڈائریکٹ آبجیکٹ آ جاتا ہے, تو پھر ڈائریکٹ آبجیکٹ آف دا ورب آتا ہے, ڈائریکٹ ورب نہیں ہے, ڈائریکٹ آبجیکٹ آف دا ورب ہے, تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ سجنا. اور اگر فی آ جاتا ہے سجنی ہوتا ہے. خالی یہاں پر روک لیں کیونکہ پھر نیکسٹ لیسن کافی لمبا ہے, 9. تو کوئی سوال ہے؟ یہ اتنی بار یہ فارم 4 آ رہا ہے یہ کتاب میں,
can we do Form 4 and then continue the lesson and मैं करना continue the चाह book? रही थी कि साथ साथ करूं, लेकिन शमीम अब चूंकि शुरू से नहीं किया ना, अब आपको पता तो चल गया ना Form 4 क्या हाँ है. Form 4 जी जी पता था. तो अरसला, अशरफा, अखरजा, जहां भी इस तरह का आता है अफअला, आप इसको याद रखें, ये फॉर्म इज अफअला. तो हर वर्ब का फॉर्म हाँ, the there are, Form 4 starts मैंने with alif. आपको शुरू में बताया था कि इस क्लास से पहले बताया था आपको, पिछले क्लास में अरबिक 2 में, के फॉर्म्स हैं, वर्ड्स के फॉर्म्स होते हैं. जो हमने फॉर्म पढ़े थे, हमने फॉर्म 1 पढ़ा था, ठीक है ना, फॉर्म 1 पढ़ा था हमने, और उसके कुछ किस्में पढ़ी थी. जैसे हमने इंशाल्लाह जब पढ़ाऊंगी ज्यादा डिटेल में तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह. जैसे हमने पढ़ा था यज़हबू पढ़ा था, फिर यसमाऊ पढ़ा था, फिर किसी में कसरा था, किसी में दम्मा था, इस किस्म के थे. लेकिन जब ये मजीद फी के फॉर्म्स आते हैं तो उसमें वर्ड के जो 3 लेटर्स होते हैं ना, फ़अला, उसके बदले वो 3 लेटर से ज्यादा हो जाते हैं. समझे कि 4 लेटर्स हैं तो वो थोड़े डिफरेंट हो जाता है. फ़अला आ जाता है, फ़अला आ जाता है, लाइक अ शद्दा ऑन द आइन, या फिर आ जाता है, अभी हम कौन सा पढ़े थे, अफ़अला, तो अफ़अला युफ़इलु, दिस इज फॉर्म 4. लेकिन मैं बीच में से नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, इससे बहुत गड़बड़ हो जाएगी. मैं खुद भी इंशाल्लाह जब पढ़ाऊंगी तो मैं भी तैयारी करके पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह, ताकि मैं कोई गलत चीज़ ना पढ़ा दूँ. मुझे भी थोड़ी याद थोड़ी रहते हैं, मैं कोई स्कॉलर भी नहीं हूँ और अरबिक की एक्सपर्ट भी नहीं हूँ. अल्लाह ताला ने जितना दिया है उतना बस अल्लाह का एहसान है कि आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ थोड़ा बहुत. तो अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले इंशाल्लाह. तो फॉर्म इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जैसे ये सूरह यूसुफ की कहानी खत्म होती है, इंशाल्लाह वील स्टार्ट विद द फॉर्म्स. मैंने शेख मुस्तफ़ा को कह दिया कि आई विल स्टार्ट विद द फॉर्म्स, आई वोंट टीच एनी न्यू ग्रामर रूल्स. ग्रामर रूल्स इसमें खुद ही थोड़े थोड़े आ ही जाते हैं. जैसे आज आ गया ना, इज़न का आ गया, किसी और चीज का आ गया था, मुझे याद नहीं किसका था, लेकिन इट कीप्स कमिंग. तो वो जो थोड़े थोड़े रूल हैं वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर वो मैं कब बताऊंगी. अभी अल्लाह, लईता, इनके भी डिफरेंट रूल्स हैं. जैसे इन्ना, काना, का अन्ना, ये सब है ना, इस तरह के रूल्स छोटे छोटे आते जाएंगे. तो और कोई क्वेश्चन है किसी का? आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी कर रहे हैं. थोड़ा कंफ्यूजन भी होती है ग्रामर में, थोड़ी होती है ना, लेकिन माशाल्लाह आप लोग पढ़ रही हैं, आप लोग खुद ट्रांसलेट कर रही हैं, और मैं देख रही हूँ कि आप लोग शायद पढ़ के भी आती हैं, क्योंकि आपको वर्ड्स पता भी होते हैं, मीनिंग्स भी पता होते हैं. तो माशाल्लाह दिस इज गुड, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. कोई उर्दू में भी कर रहा है, कोई इंग्लिश में भी कर रहा है, तो सब के सब हो रहे हैं माशाल्लाह. किसी की अरबिक रीडिंग बेहतर हो रही है, किसी की तजवीद भी बेहतर हो रही है, हालांकि कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि मुझे तो यही लगता है कि आप लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं और जिस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये लगता है कि आप लोग बहुत बेहतर होते जा रहे हैं. हमें अब ये करना चाहिए कि इसको पढ़ते पढ़ते अब थोड़ा थोड़ा हम ग्रामर कम करते जाएं. जैसे हर दफा मैं पूछती हूँ ऑब्जेक्ट है, हर दफा मैं पूछती हूँ सब्जेक्ट क्यों है, हर दफा मैं पूछती हूँ इदाफा क्यों है. अगर आप कहें तो मैं कंटिन्यू करती जाऊं इसी तरह, अगर आप कहें तो मैं इनको छोड़ती जाऊं, जैसा आप कहेंगी. यू वांट टू मूव फास्टर और यू वांट टू मूव स्लोअर एंड बी मोर लाइक, आपकी मर्जी है. ग्रामर करें तो प्लीज इंशाल्लाह कंटिन्यू करती रहिए. कंटिन्यू इसी तरह करूँ ना, ठीक है इंशाल्लाह. अब हर जगह पे हर सेंटेंस पे रुकना, हर वर्ड पे रुकना नहीं वो तो नहीं, लेकिन ये कि हाँ थोड़ा सा हम लोग अटक जाते हैं ना. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वोकैबुलरी भी बेहतर हो रही है, होती जा रही है ना, आप लिखते जाएं. ग्रामर वोकैबुलरी भी बेहतर हो रही है. वोकैबुलरी भी आप लोग लिखते जाएं ना, ऐसा नहीं हो कि आप ना लिखें, सुन लें खाली और फिर ना लिखें. देखें होमवर्क तो कुछ है ही नहीं आप लोगों के लिए. मैं तो क्वेश्चंस भी देना छोड़ दी हैं. मैंने कहा क्या करूं, क्वेश्चंस भी आप लोग पता नहीं करती हैं कि नहीं करती हैं, तो आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाएं. मेरे पास है क्वेश्चंस लिखे, मैं आई कैन सेंड यू. लेकिन अगर आप लोग ये इसको पढ़ लेती हैं और इसको ट्रांसलेट कर लेती हैं, यू अंडरस्टैंड अ बुक इन अरबिक विदाउट एनी ट्रांसलेशन, दैट इज एक्सीलेंट. जब आप ये पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको हदीस की किताबें पढ़ने में आसान होगी. ये भी इंशाल्लाह शेख मुस्तफ़ा से पूछेंगे, वो कब इजाजत देते हैं कि मैं हदीस की किताबें कुछ हम पढ़ लें. या जो हमने हदीस का कोर्स पहले किया था, बहुत पहले किया था, शुरू में किया था, आई थिंक पहले साल में ही किया था हदीस का कोर्स. उस वक्त जो है अरबिक पे हम जोर नहीं दे रहे थे, सिर्फ मैं हदीस बताती थी और हदीस की एक्सप्लेनेशन बता देती थी. मेरे ख्याल है उसी कोर्स को दोबारा करें और विद ग्रामेटिकल, है ना, वो अच्छा रहेगा मेरा ख्याल है. क्योंकि कुरान वो पता नहीं अभी इजाजत देंगे कि नहीं देंगे करने में, डिपेंड्स, लेकिन कम से कम हदीस का तो कर लेना इंशाल्लाह. और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? चलें, जो लोग देर से आए हैं उनको भी नया साल मुबारक. शुरू में ही लोगों ने नया साल, इरशादा ने सबको ईद मुबारक कह रही हूँ, नया साल मुबारक कह दिया आप सबको. आप दुआ कीजिए.
सब लोग दुआ करें एक दूसरे के लिए इस नए साल में इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला सबको हर आफत से, हर आजमाइश से, हर बीमारी से, हर नुकसान से बचा के रखे और हम सबको अल्लाह ताला बेहतरीन इबादत करने की तौफीक दे, अल्लाह की किताब को समझने की तौफीक दे और अल्लाह की दीन को समझने की तौफीक दे, और सिर्फ समझने को नहीं, सिर्फ इल्म हासिल करने को नहीं, बल्कि उस पर अमल करने की तौफीक दे, और ऐसी तौफीक दे कि हम बेहतरीन अमल कर सकें, एहसान कर सकें अपने अमाल में, और अल्लाह ताला इनको कबूल कर ले इंशाल्लाह। बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह। इस मुहर्रम में अभी 9th और 10th मुहर्रम या 10th एंड 11th मुहर्रम को आशूरा का रोज़ा भी इंशाल्लाह रखना है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आप या तो 9th और 10th को रखें या 10th और 11th को रखें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 भी रख सकते हैं, 11वीं भी रख सकते हैं, 10-11 रख लें या 9-10 रख लें। अगर आपका दिल चाहे तो 3 रखना चाहे तो 3 रखने में भी कोई वो नहीं है, हर्ज नहीं है। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि एक के बदले 2 रोजे रखें, क्योंकि एक जो है वो यहूदी रखते हैं, तो हम 2 रख लें, उनसे मुख्तलिफ हो जाए। इंशाल्लाह यौम आशूरा का रोजा सब लोग रख लें। 10 तारीख यौम आशूरा है, और अगर कोई एक रख भी ले तो गुनाह नहीं है, एक रखना भी सवाब है। कौन सा 10 तारीख आशूरा मतलब आशरा से निकला है, 10 तारीख 10 मुहर्रम का, ठीक है जी। तो ये आशूरा सैटरडे को 10 मुहर्रम सैटरडे को होगी इंशाल्लाह। मैंने देखा नहीं है कौन सा दिन है, मैं सुबह पहले से देखती नहीं हूँ, बस पता है कि रखना है इंशाल्लाह जब होगा। कैलेंडर में तो 29 ही बता रहा सैटरडे। तो जो मंडे थर्सडे को रखते हैं, फिर उसके बाद मंडे थर्सडे के अलावा सैटरडे भी रख लें, या आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रख लें, तो आपका इकट्ठे हो जाएगा। या आप बीच में गैप करना चाहें तो आप 9th और 10th का रख लें सैटरडे, क्योंकि वीकेंड है तो हो सकता है आप फ्राइडे को रखना चाहें तो फ्राइडे सैटरडे रख लें, या तो 9-10 या 10-11। जी 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 जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था, ये डिक्शनरी का, मैंने डिक्शनरी नहीं लाई, मैं कौन सी डिक्शनरी, उसका मेरा बेटा बोलता है क्या नाम है उसका? मैंने आपको नाम लिख के भेजा था, मैं दोबारा भेज दूंगी आपको, ठीक है। चलें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।